بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میرا نام دانیہ ہے، میری عمر 12 سال ہے۔ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے جب آنکھیں کھولیں تب سے خود کو ایک یتیم خانے میں ہی پایا۔ تب سے میرا گھر، میری فیملی، میری ساری دنیا یہ یتیم خانہ ہی تھا۔ لیکن تب میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں کیسی کیسی عجیب و غریب تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ یتیم خانے کا انچارج نیاز علی بہت ہی سخت گیر اور کسی حد تک ظالم بھی تھا۔ سب بچے اس سے ڈرتے تھے اور کوشش کرتے کہ کوئی ایسی غلطی نہ کریں جس سے انہیں نیاز علی کی مار پیٹ یا ڈانٹ کا شکار ہونا پڑے، اور اگر کبھی بدقسمتی سے ایسی غلطی ہو جاتی تو بس پھر اس کی خیر نہیں۔ نیاز علی اس کا وہ حشر کرتے کہ الامان۔ ایسے میں کئی بچے اس یتیم خانے سے بھاگے بھی تھے، اور شاید میں بھی ایسا کرتی، مگر مسز دیپا کی نرم دلی اور مامتا بھرا لمس مجھے کہیں جانے نہ دیتا۔ مسز دیپا مذہب کے لحاظ سے تو ہندو تھی، مگر ان کے لیے مذہب اور کمیونٹی یا ذات پات کا کوئی فرق اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ ان کے دل میں اللہ نے بے پناہ محبت بھر رکھی تھی، جسے وہ یتیم خانے کے سارے بچوں پر بے انتہا لٹایا کرتی۔ مسز دیپا کی کوئی فیملی نہیں تھی۔ ان کا بیٹا اور شوہر ایک حادثے میں مارے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے بس یتیم خانے کو ہی اپنا خاندان بنا لیا، اور شاید یہی چیز تھی جس نے مجھے ان کے بے حد قریب رکھا تھا۔ وہ دن بھر یہیں پر رہتی اور رات کو اپنے گھر واپس چلی جاتی۔ ان کے شوہر کی کچھ دکانیں تھیں جو انہوں نے کرائے پر دی ہوئی تھی۔ ان کی آمدنی سے ان کا اچھا گزارا ہو رہا تھا، اس لیے انہیں کسی کام کاج یا نوکری کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس دن بھی مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ میں باہر کھیلنے کے بعد بغیر پیر دھوئے نیاز علی کے کمرے کے سامنے سے گزر گئی۔ ان کے کمرے کے آگے قالین بچھی تھی جس پر میرے کچڑ بھرے پیروں کے نشان بن گئے۔ یہ میری بدقسمتی تھی کہ اسی وقت نیاز علی دوسری طرف سے آ رہے تھے، اور آتے ہوئے انہوں نے قالین پر میرے پیروں کے نشان دیکھ لیے، جس کی وجہ سے نیاز علی نے نہ صرف مجھے تھپڑ مارے بلکہ 2 دن کے لیے میرا کھانا بھی بند کر دیا۔ باورچن باقی چچی سخت گیری میں نیاز علی سے بھی 10 ساتھ آگے تھی، اس لیے اس کے لیے صرف ایک بار کا ہی کہنا کافی ہوا اور میرا کھانا بند کر دیا گیا۔ میں بھوک سے بے چین ہو کر کئی بار معافی مانگ چکی تھی، مگر ان دونوں پتھر دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تھک ہار کر میں کونے میں سر گھٹنوں میں دیکھ کر بیٹھ گئی۔ اسی وقت کسی کے قدموں کی آواز آنے لگی تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ مسز دیپا تھی۔ وہ مجھے پیار سے دانو کہہ کر پکارتی تھی۔ اس وقت بھی وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگی، دانو کیا ہوا بیٹی، کیوں اتنی اداس بیٹھی ہو؟ ان کے پیار سے پوچھنے پر میری آنکھیں بھر آئی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، دیپا جی، ان لوگوں نے سارا دن مجھے کھانا نہیں دیا، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ میری بات سن کر انہیں شوق سا لگا۔ انہوں نے حیرت سے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہو دانو، یہ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے روتے ہوئے کہا، دیپا جی، یہ لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں، چھوٹی سی غلطی کی بھی بہت بڑی سزا دیتے ہیں۔ ایسا ہمارے ساتھ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ماں باپ نہیں ہیں، وہ ہوتے تو مجھے وہ کھانا کھلا دیتے۔ مسز دیپا مجھے دکھ سے دیکھتی رہی، پھر وہیں بیٹھنے کا کہہ کر باہر چلی گئی۔ میں وہیں بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد دیپا واپس آتی دکھائی دی۔ ان کے ہاتھ میں کچھ شاپرز تھے جو وہ باہر سے لا رہی تھی۔ میں بے تابی سے شاپرز کو دیکھتی رہی۔ انہوں نے اس میں سے روٹیاں اور سالن نکالا، پلاسٹک کی پلیٹ پر رکھا اور میرے آگے رکھ کر بولی، دانو آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے بھی نہیں کھایا، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ کھانا دیکھ کر تو میری بھوک چمک گئی۔ میں نے ایک شکر گزار نظر دیپا جی پر ڈالی اور پھر کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ کہتے ہیں کہ ذائقے کا تعلق بھوک سے ہوتا ہے۔ بھوک ہو تو سوکھی روٹی بھی لذیذ لگتی ہے، اور بھوک نہ ہو تو مرغن کھانے بھی بد ذائقہ محسوس ہوتے ہیں۔ اس دن کھاتے ہوئے جتنا مزہ آیا تھا شاید ہی کبھی آیا ہو۔ میں کھانے میں مگن تھی کہ اچانک ہی نیاز علی کی غصیلی آواز گونجی، کس نے دیا اسے کھانا؟ میں سہم کر پیچھے کھسک گئی اور دیپا جی نیاز علی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے دیا ہے، کیوں؟ کیا نہیں دینا چاہیے تھا؟ نیاز علی نے انہیں گھور کر دیکھا اور کہنے لگا، دیکھیں مسز دیپا، اس نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے، اسی لیے میں نے اسے سزا دی ہے۔ اب اگر آپ اسے کھانا کھلا دیں گی تو وہ سزا بے معنی ہو کر رہ جائے گی، پھر کیا خاک سبق سیکھے گی یہ؟ مسز دیپا نے بھی غصے سے کہا، نیاز علی صاحب،
آپ کی بیٹی بھی اگر ایسی کوئی غلطی کرتی تو کیا آپ اسے بھی ایسی سزا دیتے؟ کیا آپ کے اندر ذرا بھی انسانیت نہیں بچی؟ بچی بیچاری بھوک سے تڑپ رہی ہے اور آپ کو سزا اور سبق کی پڑی ہے، حد ہوتی ہے بے حسی کی۔ نیاز علی نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، او بی بی، انسانیت اور بے حسی کی بات مت کریں۔ انسانیت ہے تبھی تو اس یتیم خانے کے اتنے سارے بچوں کو پال رہے ہیں جن کے ماں باپ بھی پیدا کرنے کے بعد چھوڑ کر بھاگ گئے۔ نیاز علی کی بات مجھے تیر کی طرح لگی، مگر میں کچھ بھی کہہ نہ سکی، بس شکایت بھری زخمی نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مسز دیپا تڑپ اٹھی۔ انہوں نے کہا، اگر آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے تو میں لے جاتی ہوں اسے۔ انہوں نے غصے سے کہا تو نیاز علی کچھ خفیف سے ہو گئے۔ انہوں نے معذرت خانہ لہجے میں کہا، معاف کیجیے، مگر بچوں کو سبق سکھانے اور تربیت کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ مسز دیپا نے کہا، آپ کاغذات میں اندراج کر دیں، میں اسے یہاں سے لے جا رہی ہوں۔ اور اگلے چند گھنٹوں میں اس جہنم نما یتیم خانے سے باہر تھی، اس جگہ جہاں میرے بچپن کے 12 سال بیتے تھے۔ اس جگہ کو چھوڑتے مجھے کچھ دکھ تو ہوا، مگر اس سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ میں مسز دیپا کے ہمراہ جا رہی تھی جو سراپا محبت تھی۔ مسز دیپا میرا ہاتھ تھامے اس عمارت سے دور نکل آئی۔ باہر آ کر انہوں نے ایک رکشہ پکڑا اور اسے ایک ایڈریس بتا کر میرا ہاتھ تھامے بیٹھ گئی۔ رکشے نے تھوڑی ہی دیر میں ہمیں منزل پر پہنچا دیا۔ مسز دیپا ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتی تھی۔ 2 کمروں کا یہ فلیٹ ان کی ضرورت سے زیادہ تھا۔ انہوں نے ایک کمرہ مجھے دے دیا۔ مجھے ان کے ساتھ رہتے ہوئے چند دن تک تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وقت کیسے گزرا۔ مسز دیپا کی صورت میں گویا میری ماں باپ دونوں مل گئے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی اور مجھے سگی بیٹی کی طرح چاہتی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں انہیں نام بولنے کے بجائے دیپا آنٹی کہہ دیا کروں۔ اس دن ہم نے یتیم خانے جانے کا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ مسز دیپا نے بہت سا کھانا پیک کر دیا تھا۔ میں بھی اپنے ساتھ کھیلنے والے بچوں سے ملنا چاہ رہی تھی۔ ہم ابھی تیار ہوئے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ مسز دیپا نے فون اٹھا کر ہیلو کہا۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا جس سے وہ بہت پریشان ہوئی۔ چند لمحے تک تو وہ کچھ بات کرتی رہی، پھر فون رکھ دیا۔ میں نے انہیں پریشان دیکھ کر کہا، کیا بات ہے دیپا آنٹی، کس کا فون تھا اور آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا، دانیہ بیٹا، ہمیں کچھ دن کے لیے شہر جانا پڑے گا۔ گاؤں میں میرے شوہر کی کچھ زمینیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں جانا ہوگا۔ میں خوش ہو گئی۔ میں نے پوچھا، کیا آپ بھی مجھے وہاں لے جائیں گی؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، کیوں نہیں بیٹا، ہم دونوں ہی جائیں گے۔ مجھے بے انتہا خوشی ہوئی۔ میں نے کبھی گاؤں نہیں دیکھا تھا۔ یتیم خانے والے کہیں گھمانے پھرانے کے لیے کبھی نہیں لے کر جاتے، اس لیے ہم ایک ہی جگہ قید رہا کرتے تھے۔ خیر، اس دن ہم نے کھانا یتیم خانے میں پہنچانے کے بعد ٹرین کی ٹکٹیں خریدی اور گھر آ کر ضروری چیزیں پیک کرنے لگی۔ ہمیں وہاں 15 دن تک رہنا تھا۔ ہم دونوں شام کی ٹرین میں سوار ہو گئی۔ ٹرین تیزی سے روانہ ہو گئی اور چند گھنٹے بعد ایک ویران سے نظر آنے والے اسٹیشن پر رک گئی۔ میں اس دوران سو گئی تھی۔ ٹرین رک گئی تو دیپا آنٹی نے مجھے اٹھاتے ہوئے کہا، دانیہ اٹھو، ہمیں یہیں پر اترنا ہے۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھولتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ دیپا آنٹی سامان اٹھا رہی تھی۔ میں نے بھی کچھ مدد کی اور ہم ٹرین سے اتر آئے۔ پلیٹ فارم پر گہرا سناٹا چھایا تھا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کا پلیٹ فارم تھا، اسی لیے یہاں کی خاموشی کچھ زیادہ تعجب خیز نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے کچھ عجیب سا احساس ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ برا ہونے والا تھا، لیکن کیا، میں یہ بات نہیں سمجھ پا رہی تھی، نہ ہی دیپا آنٹی کو سمجھا سکتی تھی۔ اس لیے خاموشی سے بیگ کھینچتے ہوئے ان کے پیچھے چلنے لگی۔ ہم پلیٹ فارم سے کچھ ہی دور آئے تھے کہ سامنے ایک تانگا آتا نظر آیا۔ اس میں ایک بوڑھا کوچوان بیٹھا تھا۔ اس کی عمر کوئی 60-65 کے قریب ہوگی۔ دیپا آنٹی کو دیکھ کر اس نے تانگا قریب لا کر روک دیا اور جلدی سے اس میں اترتے ہوئے بولا، سلام بی بی جی، کیسی ہیں؟ دیپا آنٹی مسکرا کر بولی، وعلیکم السلام دینو کاکا، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ دینو کاکا بولے، بس بیٹا پروردگار کا کرم ہے، ورنہ ہماری کیا اوقات، شکر ہے کہ اس نے اچھے آلو میں رکھا ہے۔ اسی وقت اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے پوچھا، ارے یہ بچی کون ہے؟ دیپا آنٹی جلدی سے تانگے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، بتاتی ہوں دینو کاکا، پہلے گھر تو چلیں۔ میں بھی ان کے ساتھ جا بیٹھی تو دینو کاکا نے تانگا آگے بڑھا دیا۔ راستے میں مجھے دیپا آنٹی سے معلوم ہوا کہ یہ تانگا انہی کا ہے اور دینو کاکا ان کے ملازم ہیں۔
दीनू काका ने एक बड़े से घर के सामने तांगा रोक लिया। मैंने हैरानी से पूछा, दीपा आंटी, ये किसका घर है? उन्होंने संजीदगी से कहा, ये हमारा घर है। दीनू बाबा दानिया तुम्हें कमरा दिखा देंगे, हाथ मुंह धोकर तुम फ्रेश हो जाओ। मैं सर हिलाते हुए अंदर चली गई। दीनू बाबा ने मुझे कमरे में पहुंचा दिया और खुद बाहर चले गए। मैं नहा धोकर एक तरफ बैठ गई। बोर होने लगी तो खिड़की खोलकर बाहर झांकने लगी। कमरे की पिछली तरफ एक बड़ा सा बरगद का दरख्त था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा था जैसे उस दरख्त पर कोई मौजूद है और मुझे देख रहा है। मुझे कुछ अजीब सी बेचैनी का एहसास होने लगा। मैं वहां से हटकर दीपा आंटी को तलाश करने लगी। उसी वक्त एक काले रंग की बड़ी सी बिल्ली मेरे सामने कूदी और म्याऊं की आवाज निकालते हुए एक तरफ भाग गई। मैं खामोशी से उसे जाते देखती रही। वो थोड़ा आगे जाकर अचानक गायब हो गई। मैं हक्का बक्का उसे जाते देखती रही। अजीब बात थी, बिल्ली अचानक से यूं गायब हो गई थी गोया हवा में तहलील हो गई हो। मैं चंद लम्हे तक तो उस अजीब व गरीब वाक़े पर गौर करती रही। फिर जब कुछ ना समझ आया तो एक तरफ चली गई। 2 दिन यूं ही गुजर गए। अगले दिन मैं चूंकि बंद रहकर तंग आ गई थी, इसलिए ज़रा घूमने के लिए बाहर चली गई। दीपा आंटी ने मुझे बाहर जाने की इजाज़त दी थी। घर के अतराफ में घूमने के बाद मैं उस बरगद के दरख्त की तरफ चली गई। कल की तरह आज भी वैसा ही एहसास हुआ जैसे कोई छुप कर मुझे देख रहा हो। मैंने दरख्त के गिर्द घूम फिर कर देखा, फिर कुछ झिझकते हुए उसके नीचे चली गई, मगर वहां भी कोई नजर नहीं आया। उसी वक्त ऐसे लगा जैसे कोई पीछे से तेजी से दौड़ते हुए गुजरा हो। मैंने घबरा कर पीछे मुड़कर देखा, मगर अजीब बात यह थी कि वहां कोई था ही नहीं। हालांकि मैंने वाज़ेह तौर पर किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनी थी। मैं काफ़ी देर आसपास घूमती रही, मगर जब कोई नजर न आया तो तंग आकर मैंने आवाज़ दी, देखो तुम जो कोई भी हो, मुझे देखकर चुप क्यों जाते हो? सामने आ जाओ। मैं बहुत देर तक इंतज़ार करती रही, मगर जब कोई ना आया तो बेजार होकर चल पड़ी। उस दिन दीपा आंटी कहीं गई थी। मैं इधर उधर की चीज़ों पर अपना ध्यान लगाने की कोशिश करती रही। शाम को दीपा आंटी आईं तो बहुत परेशान थी। उन्हें इस कदर परेशान देखकर मैंने पूछा, क्या बात है दीपा आंटी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? उन्होंने चौंक कर मुझे देखा और फिर गोया ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं गुड़िया, बस कुछ ज़मीनों के मसाइल है, उन्हीं में उलझी हुई हूँ। मैंने हैरत से पूछा, ज़मीनों के मसाइल? क्या आपकी ज़मीनें भी हैं? उन्होंने इस बात में सर हिलाया। हाँ दानिया, मेरे शौहर की कुछ ख़ानदानी ज़मीनें हैं, ये हवेली भी उन्हें वरासत में मिली थी। मुझे खुशगवार हैरत हुई। दीपा आंटी ने अपनी परेशानी तो मुझसे शेयर नहीं की, अलबत्ता मुझे खाना खाकर सोने की ताकीद करते हुए कमरे में चली गई। यहाँ आने के बाद वो बहुत मसरूफ़ हो गई थी। उनका ज़्यादातर वक्त फ़ोन पर बातें करते गुजरता। मैं बुझे दिल से उठकर अपने कमरे में चली आई। यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा बोरियत का एहसास होने लगा। मैंने वक्त गुजारी के लिए बैग से कहानियों की किताब निकाली और पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते ना जाने किस वक्त मुझे नींद आ गई। अचानक ही छन्नाके की आवाज़ सुनकर मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। मैंने लाइट जलाई और मुतजस्सिस नज़रों से इर्द गिर्द देखने लगी। आवाज़ तो ऐसी हुई थी जैसे कोई शीशा टूटा हो, मगर आसपास तो कोई भी शीशे का टुकड़ा नज़र नहीं आ रहा था। ड्रेसिंग टेबल का आईना भी सलामत था और खिड़कियों के शीशे भी बिल्कुल ठीक थे। फिर ये आवाज़ क्यों और कैसे हुई? मैंने सोचा, शायद नींद में होने की वजह से किसी और आवाज़ को मैं शीशे टूटने की आवाज़ समझ बैठी थी। यकीनन ऐसा ही हुआ होगा, वहम ही था मेरा शायद। उसी वक्त बिल्ली की म्याऊं की आवाज़ सुनाई दी। न जाने उस आवाज़ में क्या था कि मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैं दोबारा लेट गई। थोड़ी देर बाद मैं फिर गहरी नींद की आगोश में उतर चुकी थी। अगले दिन रोज़ की तरह बेहद साफ और उजला था। मैं बाहर आकर फिर से उस दरख्त की तरफ जाने लगी। जाने क्या कशिश थी उस दरख्त में जो बार बार अपनी तरफ खींच लेती। लेकिन आज मैं जल्दी उस दरख्त से बेजार हो गई। आज वो बिल्ली भी कहीं नजर नहीं आ रही थी, इसलिए मैं घर से बाहर निकल आई। बाहर निकलकर मेरे चेहरे पर कुछ रौनक आ गई, क्योंकि सामने थोड़े फासले पर गांव के कुछ बच्चे खेल रहे थे। मैं कुछ झिझकते हुए उनकी तरफ चली। वो भी मुझे देखकर खेलते हुए रुक गए। उनमें से एक लड़का जो दूसरे बच्चों का लीडर नजर आ रहा था, मुझे देखकर आगे बढ़ा और कहने लगा, तुम कौन हो? मेरा नाम दानिया है, मैं दीपा आंटी के साथ आई हूँ। मैंने घबराते हुए जवाब दिया। अच्छा,
तो तुम मुसलमान हो? उस लड़के ने मुझे घूरते हुए कहा। मैंने सर हिला दिया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ? मेरा नाम नरेश चंद्र है और मैं गांव के मुखिया का बेटा हूँ। ठीक है, तुम हमारे साथ खेलना, उसने जवाब दिया। तुम कौन सा खेल खेल रहे हो? मैंने पूछा। उसने कहा, हम आंख मचोली खेल रहे हैं, खेलोगी? मैंने कहा, क्यों नहीं, तुम लोग मुझे अपने साथ खेलने दोगे तो जरूर खेलूंगी। तो फिर आओ खेलते हैं, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने शुक्रगुजारी से उन बच्चों को देखा। थोड़ी देर में मैं सबके साथ घुल मिल गई। हम सब आंख मचोली खेलने लगे। बच्चों में से एक की आंखों में पट्टी बांध दी गई, बाकी सब उसके इर्द गिर्द भागने लगे। पट्टी वाले लड़के ने कितनी ही बार नरेश चंद्र को पकड़ा, मगर नरेश चंद्र हर बार उसको डांट देता और खेल उसी तरह जारी रहता। वहां मौजूद बाकी बच्चे भी उसकी बेईमानी पर न जाने क्यों देखते हुए भी कुछ नहीं कह रहे थे। मुझसे मजीद चुप नहीं रहा जा सका। मैंने कहा, नरेश, तुम बेईमानी कर रहे हो। मेरी बात सुनकर नरेश चंद्र गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने कहा, तुम कौन होती हो मुझे ऐसा कहने वाली? ये मेरा गांव है, मैं जो चाहूं करूं। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर बाकी बच्चों की जानिब। शायद कोई मेरे हक में भी बोले, मगर बेसूद। सभी खामोशी से हम दोनों को देख रहे थे। वो सब शायद उससे दबते थे, इसीलिए कोई कुछ बोल नहीं रहा था। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, तुमने बेईमानी की है? तुम शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा मुझे ही गलत कह रहे हो। उसने मुझे देखा और कहा, मेरे साथ झगड़ा करने वाले को मैं छोड़ता नहीं हूँ। फिर उसने आगे बढ़कर मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की। मैं उसे अपनी तरफ बढ़ते देखकर वहां से भागने लगी। नरेश और बाकी बच्चे मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे भागते आ रहे थे। मैं दीपा आंटी की हवेली की तरफ भाग रही थी, मगर अभी वो कुछ दूर थी। मैं सामने उस वीरान खंडर में घुस गई और रुककर सांस दुरुस्त करने लगी। अचानक ही धूल और मिट्टी का तूफान आ गया, मगर अजीब बात थी कि खंडर के अंदर मिट्टी का जर्रा भी नहीं उड़ रहा था। बच्चों ने इतनी मिट्टी उड़ते देखी तो चीखते हुए वहां से भाग खड़े हुए। मैंने खौफजदा नजरों से इर्द गिर्द देखा। मुझसे कुछ फासले पर एक लड़का बैठा था। उसकी उम्र कोई 18-20 साल तक होगी। मैं उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि पहले तो यहाँ मेरे सिवा कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने डरते डरते कहा, तुम कौन हो? उसने मुझे मुस्कुरा कर देखा और मेरे करीब आ गया। उसने कहा, मेरा नाम यामीन है, मैं भी इस गांव में रहता हूँ। तुम दानिया हो ना? मैंने उसे हैरत से देखते हुए कहा, हाँ, मगर तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं तो यहाँ कल ही आई हूँ। उसने पहले की तरह मुझे मुस्कुराते देखा और जवाब दिया, मैंने तुम्हें गांव के बच्चों से बातें करते सुना था, इसलिए तुम्हारा नाम पता चल गया। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मुंतज़िर नज़रों से मुझे देखने लगा। न जाने क्यों मैंने ना चाहते हुए भी अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैंने जवाब दिया, ठीक है दोस्त। वो भी मुस्कुरा कर बोला, दोस्त? उसके बाद मैं और यामीन बहुत सी बातें करते रहे। यामीन ने कहा, दानिया, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी तुम्हारे जैसी एक खूबसूरत और प्यारी लड़की से मिलवाऊं तुम्हें, वो भी मेरी अच्छी दोस्त है। मैंने मुतजस्सिस अंदाज में पूछा, क्या नाम है उसका? उसने मुस्कुराते हुए कहा, उसका नाम शीबा है। मैंने पूछा, आप मुझे उससे कब मिलवाएंगे? उसने एक नज़र मेरे पीछे डाली और बोला, लो अभी मिल लो, तुम्हारे पीछे ही तो खड़ी है वो। मैं चौंक कर पलटी तो हैरान रह गई। वाकई मेरे पीछे खूबसूरत और हसीन लड़की खड़ी थी। उसकी उम्र भी यामीन जितनी थी। मैं सहरज़दा होकर उसे देखने लगी। उसकी शहद रंग आंखें और भूरे बालों की वजह से आम लड़कियों से बहुत ही अलग नजर आती। उस लड़की ने मुझे मुस्कुरा कर कहा, क्या मैं भी तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ? मैं जो अब तक गुमसुम खड़ी थी, शीबा की आवाज़ गोया मुझे वापस होश में लाई। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम दोनों मेरे दोस्त हो आज से। मैंने उससे भी हाथ मिलाया। मेरी बोरियत उनसे मिलकर दूर हो गई। मैं उनके साथ बहुत देर तक बातें करती रही। शीबा ने मुझे एक बहुत ही अच्छी कहानी भी सुनाई, लेकिन जब वो जाने लगी तो मैं उदास हो गई। यामीन ने मुझे उदास देखा तो झुककर घुटनों के बल मेरे पास बैठ गया। उसने पूछा, क्या हुआ दानिया, तुम इतनी उदास क्यों हो गई? मैंने अफसुर्दगी से उन दोनों को देख कर कहा, यहाँ पर मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं है।
गांव के बच्चे भी मेरे साथ नहीं खेलते। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा कर बोला, फिक्र मत करो, हम हैं ना, तुम्हारे साथ खेलेंगे भी और तुम्हें घुमाएंगे भी। मैं खुश हो गई। मैंने कहा, सचमुच मुझे घुमाओगे, पक्का वादा? शीबा ने मेरे हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, हाँ पक्का वादा। उसके हाथ बहुत नरम और सर्द से थे, जैसे रुई के गाले हों। मैंने उसका हाथ थामा तो चौंक गई, क्योंकि उसके अंगूठे की हड्डी थी नहीं, वो बगैर हड्डी के था, बेहद नरम सा। मैं मुंह खोलकर उसे देखने लगी। शायद शीबा भी मेरी हैरत बांप चुकी थी, इसीलिए उसने जल्दी से अपने हाथ मेरे हाथों से निकाल लिए। मुझसे रहा न गया तो मैंने पूछ ही लिया, शीबा आपके हाथ ऐसे क्यों हैं? मैंने आज तक किसी का भी ऐसा हाथ नहीं देखा। शीबा पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराई और उसने कहा, मैं तुम्हें ये सब बताऊंगी मगर अभी नहीं, और वादा करो कि किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं करोगी। मुझे ये बात बड़ी अजीब सी लगी, मगर मैंने इस डर से जल्दी से वादा कर लिया कि कहीं वो मुझसे नाराज़ न हो जाए। खैर, मुझे घर के दरवाजे तक छोड़ने के बाद वो दोनों वापस चले गए। मैं इस बात से बेखबर थी कि वो दोनों तो चले गए, मगर मेरी नज़र में, क्योंकि उस वक्त भी वो बरगद के दरख्त के नीचे बैठे थे, बस हम में से कोई भी उन्हें देख नहीं पा रहा था। शीबा के चेहरे पर परेशानी के तासुरात थे। उसने यामीन से कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि वो कर पाएगी ये काम? यामीन ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं। इस वक्त मुझे यही वाहिद लड़की नजर आई है जो सारी शराइत पर पूरा उतरती है। मुझे यकीन है कि वही हमारी मतलूबा चीज़ ला सकेगी, बस किसी तरह इसे खुश रखना होगा ताकि वो किसी बदगुमानी में मुब्तला ना हो। शीबा ने हिचकिचाते हुए कहा, यामीन अगर खुदा न खास्ता उसे कोई नुकसान पहुंचा तो फिर तो सरदार की तरफ से हमें सज़ा भी मिल सकती है। यामीन चंद पल के लिए खामोश हो गया, फिर वो एक नए अज़्म से बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उसकी हर तरह से हिफाजत करूँगा। वो दोनों खामोश होकर मेरे कमरे की खिड़की को देखने लगे। घर में दीपा आंटी को ढूंढते हुए मैं बैठक की तरफ चली आई। अभी अंदर जाने के लिए दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा ही था कि अंदर से उभरने वाली आवाज़ सुनकर ठटक कर रुक गई। कोई शख्स बड़े ही गुरूर और रौनक भरे लहजे में कह रहा था, देखिए भाभी जी, आप जो चाहें कहें, मगर इस ज़मीन और घर में मेरा हिस्सा बनता है। दीपा आंटी ने उसे गुस्से से जवाब देते हुए कहा, आप ये क्या कह रहे हैं हरीश चंद्र जी? मैं ज़मीन जो कानूनी तौर पर आपका हिस्सा बनता था वो आपको दे चुकी हूँ। रही इस मकान की बात, तो इस पर तो आपका कोई हक ही नहीं बनता। ये मेरे पति को अपने बाप से विरसे में मिला था, फिर आप किस हक से ये दावा कर रहे हैं? उस शख्स ने कहा, आपकी बातें ठीक हैं भाभी जी, मगर खुद ही सोचें, भाई साहब और मेरा भतीजा तो अब इस दुनिया में रहे नहीं। आप इस सब का अकेली जान क्या करेंगी? क्या इससे अच्छा नहीं कि घर की दौलत घर में ही रहे? आपके बाद इस सब का वाली वारिस भला कौन है? फिर आप इस बिला वजह की जिद पर क्यों अटकी हुई हैं? दीपा आंटी ने गुस्से से लरजती आवाज में कहा, हरीश चंद्र जी, आपको इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस सारी जायदाद और घर की वारिस मेरी बेटी है। हरीश चंद्र ने चौंक कर कहा, क्या मतलब है आपका इस बात का? आपका तो सिर्फ एक बेटा था जो एक्सीडेंट में मारा गया, फिर ये बेटी कहाँ से पैदा हो गई? दीपा आंटी ने पुरसकून आवाज में कहा, मैं आपकी हर बात का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ हरीश चंद्र साहब, और आप बहुत वक्त जाया कर चुके हैं मेरा, बेहतर है यहाँ से चले जाएं। हरीश चंद्र नाम का वो शख्स ये बात सुनकर तिलमिला उठा और गुस्से से तनफन करता बाहर निकल गया। जाने से पहले उसने मुझे बड़े गौर से देखा था। बाहर निकलकर वो बड़बड़ाया, बहुत हो गया, अब इन दोनों का कुछ करना पड़ेगा। मैं बैठक में गई तो दीपा आंटी को खामोश सर झुकाए बैठे देखा। मैं खामोशी से उनके करीब बैठ गई। मुझे देखकर वो चौंकी और आंखों से आंसुओं को साफ किया। मैंने उनका हाथ थामकर कहा, दीपा आंटी, वो आदमी कौन था और आपसे क्यों लड़ रहा था? दीपा आंटी ने कहा, वो मेरे पति का कजिन था, लालच में अंधा हो गया है, वो मांग रहा है जिस पर उसका हक ही नहीं बनता। मैं क्या कहती, बस खामोशी से उनका हाथ सहलाते हुए उन्हें हौसला देने की कोशिश करती रही। यूं से अगले दिन का जिक्र है। वो रात का वक्त था, बल्कि आधी से ज्यादा रात बीत गई थी। मैं और दीपा आंटी अपने कमरे में बाहर की सूरत हाल से बेखबर गहरी नींद सो रहे थे। बाहर अचानक मौसम तब्दील हो गया। आसमान पर घने बादल छा गए। गरज चमक के साथ बार बार बिजली बड़ी शिद्दत से चमकती
और आसपास का इलाका रोशन हो जाता। हल्की हल्की हवाएं अब शिद्दत इख्तियार करने लगी और सर्दी में अचानक इजाफा हो गया। उस वक्त घर से काफ़ी दूर एक गाड़ी रुकी और उसमें से 4 नकाबपोश निकले। उनके हाथों में असलहा था। वो एहतियात से अतराफ का जायजा लेकर चलते हुए हमारे घर के करीब आकर रुके। गेट बंद था। उनमें से 2 नीचे दीवार से टेक लगाकर बैठ गए और तीसरा उनकी पीठ पर चढ़कर दीवार फलांग कर अंदर कूद गया। उसने अंदर जाकर दरवाज़ा खोल दिया। हवेली में दीनू काका के अलावा सिर्फ उसकी एक ही बेटी बाहैसियत मुलाजिम रहती थी। ना कोई चौकीदार था, इसलिए उन लोगों को कोई मसला नहीं हुआ अंदर आने में। वो दबे कदमों चलते अंदर आए। अचानक ही उनमें से एक ठटक कर रुक गया। फिर उसने नीचे अपने पैरों की तरफ देखा। दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश की तो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सका और ड्रम से मुंह के बल जा गिरा। उसके गिरने की जोरदार आवाज़ सुनकर उसके साथी रुक कर उसकी तरफ देखने लगे। उसे ज़मीन पर पड़े देखकर उन्होंने दौड़कर उसे उठाया। उनमें से एक ने कहा, क्या अंधे हो गए हो? देख कर नहीं चल सकते? अगर अभी कोई उठ गया तो? उसने घबराते हुए कहा, भाई मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने अचानक मेरे दोनों पैर पकड़ लिए हों। मैं तो छुड़ाने की कोशिश में गिर गया। दूसरे ने कहा, लगता है जागते में ख्वाब देख रहे हो। पहले वाला बोला, अच्छा बस फजूल में बहस ना करो, काम पर तवज्जो दो। उसकी बात सुनकर वो लोग फिर से अंदर की तरफ बढ़ने लग गए कि अचानक ही एक के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। वो सहम कर इधर उधर देखने लगा। उसने कांपते हुए लहजे में कहा, भाई मुझे अभी अभी किसी ने थप्पड़ मारा। वो घबरा कर उसे देखने लगे। उनके सरगना ने कहा, मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि आज कोई नशा मत करना। तुम लोगों ने नहीं मानी मेरी बात। जिसे थप्पड़ पड़ा था वो कस्में खाने लगा कि उसने नशा नहीं किया। उनको डांट डपट करने के बाद वो आगे बढ़ा, लेकिन फिर उछलकर पीछे हट गया। उसे अपने पैरों के नज़दीक एक बहुत बड़ा सांप नजर आया जो फन फैलाए सामने खड़ा था। उसे तेजी से पीछे हटते देखकर उसके साथियों ने पूछा, क्या बात है भाई जी, क्या हुआ? उसने परेशान होकर कहा, सांप। उसके साथियों ने इधर उधर देखा, फिर उससे पूछने लगे, भाई जी कहाँ है सांप? सांप सरगना की तरफ देखकर जोर से फंकारा तो इसने झिंझिला कर कहा, अंधे हो क्या? ये सामने नजर नहीं आता? उसके साथियों ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा। फिर उनमें से एक ने कहा, भाई जी हमें तो कोई सांप नजर नहीं आ रहा। बाकियों ने भी इस बात में सर हिलाकर उसकी तायीद की। वो वाकई में सांप किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। वो सरगना ये सुनकर बुरी तरह से घबरा गया। उसने उंगली से इशारा करते हुए उन्हें सांप की जगह के बारे में बताने की कोशिश करते हुए कहा, वो देखो मेरी उंगली की सीध में, वो देखो। उसके साथियों ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश की, मगर फर्श पर वो जगह बिल्कुल खाली थी। वहां पर कोई भी सांप नजर नहीं आ रहा था। सरगना ने झिंझिला कर अपनी राइफल सीधी की और सांप का निशाना लगाने लगा। जो ही उसने गोली चलाई, बिजली जोर से कड़की और गोली के चलते ही सांप तेजी से उछलकर उसकी तरफ लपका। वो बौखलाकर पीछे हटा, अपने एक साथी से टकराया और उसे साथ ले जाकर नीचे गिरा। उसने उठते हुए इधर उधर देखने की कोशिश की, मगर कहीं भी सांप का वो वजूद नजर नहीं आया। ना ही कहीं पर कोई खून का धब्बा दिखने को मिला। बिजली दोबारा बड़ी शिद्दत से चमकी। वो दोनों सहम कर एक दूसरे को देखने लगे। बादलों की गरज में गोली की आवाज दब गई थी। उनमें से एक ने कहा, भाई इधर कुछ गड़बड़ है। अपने साथ ये अजीबोगरीब वाकयात यूं ही नहीं हो रहे। थप्पड़ पड़ना, पैरों में किसी का चिमटना और तुझे अकेले को सांप नजर ना आना, ये सब यूं ही नहीं हो रहा। इससे पहले कि किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं, मेरी मानो तो चलो यहाँ से। वो सरगना खुद भी घबरा गया था, मगर काम अधूरा छोड़कर वापसी की सूरत में वो उस मोटी सी रकम से हाथ धो लेता जिसका उससे वादा किया गया था। उसने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो हम सबका वहम था। वो सांप कहीं रेंग गया होगा। दूसरे ने अचानक ही पीछे हटते हुए कहा, भाई जी तुम लोग जाओ इस खतरनाक सूरत हाल के मुंह में, मैंने नहीं जाना। सरगना ने घूर कर उससे कहा, फीके तुझे पैसे नहीं मिलने। फिर उसने बाहर जाते हुए कहा, भाई मैं बाज आया ऐसे पैसों से, मुझे जाने दो।
वो भागता हुआ वापस चला गया। दूसरे भी अंदर जाने से हिचकिचा रहे थे, मगर अपने लालच की वजह से मजबूर होकर आगे बढ़ने लगे। अंदर कॉरिडोर में दाखिल होकर वो इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ने लगे। अचानक ही बल्ब जलने बुझने लगे। उसी वक्त एक स्याह परछाई से उनके सामने पल भर को नजर आकर गायब हो गई। वो बौखला कर पीछे हटे। कॉरिडोर की दूसरी तरफ भी वैसी ही स्याह परछाइयां नजर आ रही थी। वो घबरा कर कभी इधर देखते तो कभी दूसरी तरफ। स्याह परछाई कभी एक तरफ नमूदार होती तो कभी दूसरी तरफ। इससे पहले कि वो कुछ कहते या करते, ऊपर से अचानक ही खून की बूंदें बरसने लगी। उन्होंने घबरा कर ऊपर देखा। छत पर मौजूद फानूस जल रहा था और उसी में से खून की बूंदें टपक रही थी। नकाब पोशों में से दो मुंह से डरी डरी आवाजें निकालकर बाहर भाग गए। अब सिर्फ सरगना अकेला ही बचा था। खौफ ने तो उसका भी हुलिया बिगाड़ रखा था, मगर जाने किस दिल से वो अभी तक वहां खड़ा था और भागा नहीं था। इतनी सर्दी में भी उसके जिस्म से पसीना छूट रहा था। उसने थूक निगलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर उससे कदम उठाए ही न गए। सामने मौजूद परछाई अचानक ही एक आदमी के खून से भरे जिस्म में बदल गई। वो हैबतनाक निगाहों से उसे घूरता हुआ आहिस्ता आहिस्ता दांत खचखचाते उसकी तरफ बढ़ रहा था। सरगना उस शख्स को पहचानता था। उसने आखिरी दफा उस शख्स को मरते हुए देखा था। उसने फटी हुई निगाहों से उसे देखते हुए कहा, तुम तो मर गए थे ना? उस शख्स ने भयानक कहका लगाकर कहा, हाँ मैं मर गया था, तुमने ही तो मुझे मारा था, अब मैं तुम्हें भी लेने आया हूँ। नकाब पोशों का सरगना घबरा कर पीछे हटते हुए बोला, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे माफ कर दो। वो चिल्लाता हुआ बाहर भाग गया। अंदर खड़े शख्स के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट आई और अगले ही पल वो गायब हो गया। अगले दिन मैं उठी तो सब कुछ मामूल के मुताबिक था। मैंने दीपा आंटी के साथ नाश्ता किया और फिर उनकी इजाज़त लेकर बाहर निकल गई। मैं यामीन और शीबा को तलाश करने लगी। न जाने वो कहाँ रहते थे। इतने बड़े गांव में उन्हें तलाश करना बहुत मुश्किल था। और फिर मैं तो उनके गांव वालों को भी नहीं जानती थी। पहले ख्याल आया कि दीपा आंटी से पूछ लूं, लेकिन फिर मैंने इरादा मुलतवी कर दिया। तभी सामने से दीनू काका हाथों में कुछ शॉपर्स उठाकर आते हुए मुझे नजर आए। मैं जल्दी से उनके पास जाकर पूछने लगी, दीनू काका, आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? दीनू काका हंसकर बोले, अरे बिटिया, कब से का क्या मतलब, मैं तो यहीं पर पैदा हुआ हूँ। मैं खिल उठी। मैंने पूछा, दीनू काका, फिर तो आप सब गांव वालों को अच्छी तरह से जानते होंगे। उन्होंने कहा, हाँ बिटिया, अरे मैं तो उनके बच्चों के बच्चों को भी जानता हूँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा, दीनू काका, क्या आप जानते हैं कि यामीन और शीबा कहाँ रहते हैं? मुझे उनसे मिलना है। दीनू काका ने कुछ ताज्जुब से मुझे देखा। कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, बिटिया, इस नाम का तो कोई लड़का या लड़की नहीं है हमारे गांव में। तुमने उन्हें कहाँ देख लिया था? मैंने उंगली के इशारे से उस खंडर की तरफ इशारा करके बताया कि वहां पर। दीनू काका के चेहरे पर अचानक ही खौफ और घबराहट के आसार नजर आने लगे। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, तुम उधर क्या लेने गई थी? मैं उनका डर ना समझते हुए बोली, बस यूं ही चली गई थी वहां पर। क्यों? आप इतने परेशान क्यों हो गए हैं? उन्होंने भी एक सहमी हुई नजर खंडर पर डाली और फिर झुककर राजदाराना अंदाज में मुझसे कहने लगे, बिटिया जी, आइंदा उधर मत जाना, उस तरफ तो कोई भी नहीं जाता, साया है उस मनूस जगह पर, समझी आप? अगर वो दोनों तुम्हें मिले थे तो वो इंसान तो हरगिज नहीं हो सकते। आइंदा कभी भी वहां पर मत जाना। ये कहकर वो डरी डरी नजरों से खंडर की तरफ देखता हुआ तेजी से एक तरफ चला गया। मैं हैरान परेशान सी और सहमी हुई नजरों से उस खंडर की जानिब देखने लग गई।
दीनू काका की बातों ने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं खामोशी से वापस घर के अंदर चली आई। वो सारा दिन मैं घर से बाहर तक ना निकली और अपने खिलौनों से अपने दिल को बहलाने की कोशिश करती रही। शाम को ही दीपा आंटी के साथ खाना खाकर मैं जल्दी ही सोने चली गई। बिस्तर पर लेटी मैं यामीन और शीबा के बारे में सोच रही थी कि अचानक ही मुझे आवाज़ सुनाई दी, दानिया। मैं घबरा कर उठ बैठी। मेरे सामने यामीन खड़ा था। मैं तो उसे देखकर ही डर गई। मैंने उसे सहम कर कहा, तुम यहाँ कैसे आए हो? दरवाज़ा तो बंद है। यामीन ने नरमी से कहा, डरो मत दानिया, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आए। हमें तो खुद तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं कुछ चौंक कर उसे देखने लगी। मेरी मदद की ज़रूरत? वो क्यों? मैंने खुद पर काबू पाते हुए उससे पूछा। सोचा अब मुझे इससे इतना डर नहीं लग रहा था। दानिया, हम जिन्नात की कौम में से हैं। हमारे कबीले के सरदार का बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है। तबीबों के मुताबिक उसे बचाने के लिए जिस दवाई की ज़रूरत है वो एक हीरे से बन सकती है, मगर हम उस हीरे तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। इसीलिए हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। उसी वक्त एक झमाका सा हुआ था और शीबा भी वहां आन मौजूद हुई। मैं हैरत से उन दोनों को देखने लगी। अचानक ही मुझे शीबा का बगैर हड्डियों वाला हाथ याद आया। उसका हाथ और उसकी गैर फितरी आमद देखकर मुझे यकीन करना ही पड़ा कि वो जिन्नात में से ही है। मैंने उनसे पूछा, लेकिन मेरे पास तो ऐसा कोई भी हीरा नहीं है, फिर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? शीबा ने कहा, हम जानते हैं वो तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन तुम इसे हासिल कर सकती हो। मैंने उससे पूछा, वो कैसे? वो मुझे तफसील से बताने लगी। मैंने कुछ हिचकिचाते हुए हामी भर ली। ठीक है, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, क्या तुम अभी चल सकती हो? यामीन ने पूछा तो मैंने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, चलो। शीबा और यामीन ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, अपनी आंखें बंद कर लो। मैंने आंखें बंद कर दी। थोड़ी ही देर बाद मैंने उनके कहने पर आंखें खोल दी। हम एक कुएं के सामने खड़े थे। थोड़ी ही दूर एक बुजुर्ग का मज़ार नज़र आ रहा था। मैंने डरते डरते उनसे पूछा, मैं इस कुएं में कैसे उतरूंगी? यामीन ने कहा, ये कुआं नहीं है, ये बावली है। मैंने ताज्जुब से पूछा, बावली? वो क्या होता है? यामीन ने मुस्कुरा कर कहा, होता है नहीं, होती है। ये एक कुएं जैसी ही होती है, बस इसमें सीढ़ियाँ होती हैं। पुराने दौर में लोग ऐसी बावलियाँ बनाया करते थे। तुम्हें इन सीढ़ियों पर चलते हुए नीचे उतरते जाना है और पानी के करीब पहुंचकर वो हीरा ढूंढना है। इसके साथ ही उसने कोई तावीज़ मेरे बाजू पर बांधा और कहा कि जाओ, ये अब तुम्हारी हिफाजत करेगा, जाओ अब। मुंडेर से सीढ़ियाँ साफ उतरती नजर आ रही थी। मैं डरते डरते अल्लाह का नाम लेकर कुएं में उतर गई। संभल संभल कर कदम रखते हुए मैं काफ़ी नीचे चली गई। मेरे पैरों को पानी ने छुआ तो मैं इधर उधर देखने लगी। कुएं की दीवार के करीब ही मुझे हल्की हल्की सी रोशनी नजर आई। मैंने उस पर हाथ रखा तो कच्ची दीवार में मुझे उभार सा महसूस हुआ। शायद यही वो हीरा था। मैं जोशो खरोश से उसे खींचने लगी। वो मेरे हाथों में आ गया, मगर मैं अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और पानी में जा गिर गई। खुदा का शुक्र था कि इस दौरान वो हीरा मेरे हाथ से नहीं छूटा था। मैंने घबरा कर सीढ़ियाँ ढूंढने की कोशिश की, मगर पानी इतना ज़्यादा था कि मुझे नीचे की तरफ खींच रहा था। मैंने अपनी सारी ताकत इस्तेमाल करते हुए सीढ़ियों तक पहुंचने की कोशिश की और खुशकिस्मती से ही मैं वहां पर पहुंच गई। मैंने सीढ़ियों पर कदम रखा और साथ ही मुझे सांप की फंकार की आवाज़ सुनाई दी और मेरी पिंडली में जैसे कई सुइयां चुभ गई हों। मैं चीख कर ऊपर भागी। कुएं से बाहर आकर मैं बेदम होकर गिर गई। मेरी पिंडली में जैसे आग से जल रही थी। यामीन और शीबा ने दौड़कर मुझे उठाया। मैंने रोते हुए कहा, सांप, सांप ने मुझे काट दिया। यामीन ने जल्दी से अपना हाथ सांप के काटने की जगह पर रख दिया। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने यख बर्फ को मेरी पिंडली पर रख दिया है।
सांप ने जहाँ डंग मारे थे वहाँ से काला खून निकलने लगा और उसके साथ साथ मेरी पिंडली में मौजूद दर्द और तकलीफ भी ख़त्म होने लगी। चंद लम्हों बाद यामीन ने अपना हाथ हटाया तो मैं तो ये देखकर हैरान रह गई कि वो ज़ख़म का नामो निशान तक नहीं था। मैंने उन्हें हीरा तो दे दिया। वो दोनों खुशी से खिल उठे। मेरा शुक्रिया अदा करने के बाद वो लोग जिस तरह मुझे वहाँ से लेकर गए थे वैसे ही मुझे घर पर छोड़ कर गए। चंद दिन बाद मैं दीपा आंटी के साथ उसी ट्रेन में बैठी हुई थी। हरीश चंद्र को पुलिस ने उसके एक आदमी की गवाही पर ही गिरफ्तार कर लिया था। उसने एतराफ़ किया था कि उसी ने दीपा आंटी के शोहर और बेटे की कार को ट्रक तले कुचल कर मारा था और उसको हादसे की शक्ल देकर बच गया था। उसकी वायद गर्ज जायदाद थी और इसीलिए उसने हमारे लिए वो हथियार बंद नकाब पोश भी भेजे थे कि वो हमें भी मार दें। मगर यामीन और शीबा ने ना सिर्फ हमें बचा लिया था बल्कि उसके उस आदमी को उसके ख़िलाफ़ गवाही देने पर भी मजबूर कर दिया। ट्रेन अब तेज़ी से आगे बढ़ने लगी तो मैं चौंकी। खिड़की के करीब यामीन और शीबा फ़िज़ा में तैर रहे थे और हाथ हिला हिलाकर मुझे अलविदा कह रहे थे। मैंने भी मुस्कुरा कर उन दोनों को अलविदा कहा और फिर वो दोनों गायब हो गए। मैंने सीट से टेक लगाकर मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लीं और अपने बराबर में बैठी हुई दीपा आंटी का हाथ थाम लिया। अब हम महफूज थे, शायद हमेशा हमेशा के लिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उर्दू रेडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।